आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग कहाँ पे थे लास्ट टाइम? फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। ओके, बातें बंद करो और हेडिंग डालो फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, नथिंग स्पेशल टू डिस्क्राइब। सीधे मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिखो। कहीं फंसे तो विल टॉक अबाउट इट। लिखो ब्रॉडली। ब्रॉडली देर आर broadly there are three major functions of attitude. Three major functions of attitude. First is adaptive function. Adaptive function. Adaptive function or utility function. Adaptive function or utility function. Broadly, there are three. First is adaptive or utility. As its name suggests, adaptive and utility means what? To maximize the utility. It helps us to get adapt in a particular situation. Adaptive function. If you are walking on the road, एक बच्चे ने पीछे से साइकिल का हॉर्न बजाया, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा. But if truck is honking, then what you will do? It is utility function to maximize the utility. I hope you're getting this. If you are sitting in examination hall, तो every student, फिर वो कितना भी गधा क्यों ना हो, that person is in tension that I have to write something in this examination. साल भर पढ़ाई नहीं किया, but in exam hall वो pressurize हो जाएगा. Yes or no? Because in examination hall you have to behave in a particular manner. You have to function accordingly. That is utility function. You can write in that. It is main function of attitude. It is main function of attitude that helps in maximizing utility of a person. Utility of a person in a given situation. Utility of a function. Utility of a person in given situation. A person has to react. A person has to react in a particular situation. A person has to react in a particular situation. And if a person does not react in a suitable manner, he would not be able to. If a person does not react in a suitable manner, he would not be able to adapt to that situation. Adapt to that situation. To that situation. In other words, we can say that utility function means utility function means that attitude helps
in maximizing the rewards, in maximizing the rewards, or minimize the losses, or minimize the losses. And it helped them to survive, to adopt, survive, adopt, and succeed, in different situation, succeed in different situation. I hope you're getting this. With every object we have acquired certain attitude, and that attitude help us to react appropriately. If we are reacting in a particular manner, we will survive, we will be getting adapted to the situation, otherwise we will get perish. Yes or no? Even if you are not reacting, that is also a reaction. If you have observed a snake in the dark room, what you will do? Bhagoge na, because you have acquired that attitude regarding the snake. आप नहीं भागे, आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, that is also a reaction. नॉन रिएक्शन इज ऑल्सो रिएक्शन ना. सो अगर आप भाग गए, वो जहरीला सांप है और अंधेरा भी है रूम में, आप भाग गए तो शायद बच जाओगे. इट हेल्प टू सर्वाइव. यस और नो? सिचुएशन को अडाप्ट कर लेना. different circumstances could be there in your life. How you are reacting to those circumstances, it is based on your attitude, it is based on your. I hope you're getting this. Yes or no? ये इस क्लास में भी टेस्ट हुआ था क्या 2 दिन पहले? नहीं हुआ था? हुआ था. एक क्लास में किसी में तो टेस्ट हुआ था और 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, because of the negative attitude that people have acquired. They don't know how to deal with people. And what has happened? One person, the person who was acting like an invigilator, he asked a student to sit down. Student का ego, तूने कैसे बोल दिया बैठने को? Now you have to understand कि if an invigilator is appointed, तो उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया है that you have to maintain decorum in the classroom. You have to understand his or her conditions. That he will shout, she will shout, he or she will ask me to keep calm, keep quiet, sit down. उसमें उसकी गलती नहीं है, उसको दिया गया है जॉब. Now this person who is acting like an invigilator, he too have to understand, or she too has to understand that you people are also human. Human carries the dignity. While performing your duties, you should never undermine the other's dignity. This is art of dealing with people, how you are dealing with people. जैसा एटीट्यूड आप एक्वायर करोगे, अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू बिहेव. अगर दोनों ने पॉजिटिव एटीट्यूड एक्वायर किया होता तो बहस ही का मुद्दा ही नहीं था. दे स्टार्टेड फाइटिंग. एंड देन आई वेंट टू देयर क्लास. आई एक्वायर्ड लॉट ऑफ कंटेंट. बहुत मजा आया मेरे को. आई वाज थिंकिंग, काश आई कुड ऑब्जर्व दैट डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली खबर आई इधर उधर से उड़ती उड़ती, अरे ऐसा ऐसा हुआ. बट क्या ब्यूटीफुल फिनोमेना. 2 people आर फाइटिंग क्योंकि उसने कहा नीचे बैठो, तुमको यहाँ बैठना पड़ेगा. सर उसको ऐसा बोलना चाहिए था क्या? ना, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था. उसको बोलना चाहिए था तेरे को यहाँ बैठना पड़ेगा. बोले सर आप मजाक समझ रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं, आई एम वेरी सीरियस. गधे लोग. ये कोई लड़ाई का मुद्दा था. हाउ यू आर अडॉप्टिंग टू द सिचुएशन, how you will get adapted to the particular situation, it is depending on your attitude. Class 12 का mark will not come into force here. Don't talk me like that. I scored 85% mark in class 12th examination. तो क्या करें इसमें? It is about how you are behaving in society. Attitude help you to deal with people. How you will get adapt to a particular situation, it depends on your
attitude. So it increases your rewards and minimizes your losses. Increases your rewards and minimizes your losses. I hope you're getting this. You have to acquire right attitude in your life, then only you could live a peaceful and happy life. 150 crore people are living in India, and everyone is, I can't use the word, एक से एक धुरंधर हैं. Don't argue with them. Even if they are wrong, don't argue with them. Even if they are wrong, don't argue with them. क्योंकि वो तो फुर्सती राम है. He will keep arguing, she will keep arguing. पर आपका वो दिमाग खराब करेगा, आपके 2 घंटे बर्बाद होंगे. Even if he or she is wrong, appreciate them. अरे बहुत बढ़िया, ऐसा ही तो होता है. बाकी जनता तो मूर्ख है, तुम ही करेक्ट हो, and move on. I hope you're getting this. It's all about attitude, how you are acquiring the attitude, what kind of attitude you're acquiring. It will increase your utility. I hope you're getting this. It will maximize your rewards and minimize your main function of attitude. Attitude का और दूसरा function भी है, but सबसे important function is what? Utility. I hope you're getting this. Why it is very important. Keep writing. For instance, if a person does not appropriately react, if a person does not appropriately react in exam, he or she will fail. He or she will fail. And if person does not react, timely on roads, there can be an accident. There can be an accident. There can be an accident. Therefore, we can say, that utility function is about guiding that how one should react, guiding or guidance that how one should react. If an individual has acquired, change the paragraph. If an individual has acquired positive attitude or appropriate attitude, like flexibility, has acquired appropriate attitude like flexibility, courage, patience, optimism, liberal, etc, then they can adjust better. Or react better. They can adjust better and react better, and can get positive outcomes. And can get positive outcome. Otherwise they will be fail. They will get fail and will experience unnecessary problems.
आई होप यू गेटिंग दिस, यस और नो, हाँ या ना? ठीक से रिएक्ट नहीं किया तो फंस जाओगे, यस और नो, डेंजर में पड़ जाओगे। ठीक से रिएक्ट कर लिया तो बच जाओगे, रिवॉर्ड्स मिलेगा। नाउ यू कैन राइट वन मोर थिंग इन दैट, there could be many example from daily life, there could be many examples from daily life, like first point, रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी हम लिख चुके हैं, इसके ऊपर, रोड के ऊपर एक लाइन लिखे ना, रोड पर ठीक से और टाइम पे बिहेव नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, रोड सेफ्टी। सेकंड, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। थर्ड, वर्क प्लेस, वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे कैसे, समवन क्रिटिसाइज्ड यू एंड नाउ यू आर लाइक कि ओके these people are criticizing me on these points, it's a feedback for me, it is a feedback for me, I could improve myself on these points। negative attitude, अबे साले यहीं बेकार है लोग, हाँ, these people are against me, negative attitude। it is about upon you that how you are reacting on this, yes or no? Then you can write traveling, traveling, have you people traveled in Indian railway? रेलवे में कितने लोग ट्रेवल किए, कितने नहीं किए, सॉरी टू से, कितने नहीं किए, रेल में ट्रेवल नहीं किए, रेल में ट्रेवल नहीं किए हो। और कोई, आप प्लेन में ही करते हो, कुछ लोग रेल में ट्रेवल नहीं किए। अच्छा, कितने लोग जनरल बॉगी में ट्रेवल नहीं किए हैं? अरे मंदिर से कितने लोग जनरल बॉगी में ट्रेवल ही नहीं किए, रेल में नहीं किए, वो तो मिल गया एक आदमी। और इनमें से कितने जनरल बॉगी में ट्रेवल नहीं किए? अच्छा, कितने लोग जनरल बॉगी में ट्रेवल किए हैं? सो यू पीपल माइट हैव सीन रियल इंडिया, है ना, ब्यूटीफुल इंडिया, रियल इंडिया। एवरीवन इज इंटरफेयरिंग इन अदर्स डोमेन, हाँ या ना? आप में से कितने लोग हैं जो जनरल बॉगी में ट्रेवल करके बहुत तकलीफें फील की आप लोगों ने? कितने लोग हैं? क्या तकलीफें फील की आपने जनरल बॉगी में? फाइट वगैरह आपका हुआ? तो आपको क्या तकलीफ हुई? दूसरे फाइट कर रहे हैं, इट इज नॉट तकलीफ फॉर अस, इट इज एंजॉयमेंट फॉर अस। यू डोंट नो हाउ टू एंजॉय इन सोसाइटी। आपने क्या तकलीफें फेस की? आप ही की हो गई थी? बहुत परेशान हो गए थे, चिड़चिड़ एकदम, ये कहाँ फंस गई। ओके, और किसको, आपको क्या तकलीफ हुआ? ओवर क्राउड, हाइजीन, डू यू नो स्पेलिंग ऑफ हाइजीन? कैसी बातें कर रहे हो आप, हाइजीन? वी आर लिविंग इन इंडिया, वी आर ट्रेवलिंग इन रेलवे एंड डिमांडिंग हाइजीन, दैट टू इन जनरल बॉगी। आपसे क्या बात करें अब? आई हैव सीन पीपल हु आर ट्रेवलिंग इन रेलवे and you should go in general bogie and you could see how people are behaving in general bogie। what people do, long journey होता है तो जाके एक सीट पर फैल जाते हैं। क्या कर रहे हो? सीट घेरी हुई है, 4 लोग आएंगे, पता चल कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, जबरदस्ती फैल के बैठा हुआ था वो आदमी। और फिर पूरे रास्ते में वो कोई इधर घुसेगा, कोई इधर कोहनी मारेगा, ये करेगा, वो करेगा। और फिर उतरने के बाद लोग रो रहे हैं, अरे यार बेकार सिस्टम, ये वो। जैसे 2-4 लोग तो गए क्यों थे फिर? क्या तुमको पता नहीं था कि जनरल बॉगी में सब इश्यूज हो गए? गए क्यों थे? इट इज अप टू यू कि आप उससे इरिटेट हो जा रहे हो या मजा ले रहे हो, इट्स अप टू यू। ये तो आपको पता ही था। किसी को बोलो जनरल बॉगी में, अरे आंटी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ ना, किधर बैठूंगी मैं? आंटी जीवन भर थोड़ी तेरी गोदी में बैठ के जाना है मेरे को, लेकिन वो थोड़ा सा खसक जाए, 2 घंटे की बात है। पीपल कांट एडजस्ट किधर। अरे आप मान के चलो ना, इफ यू आर गोइंग इन रेलवे दैट टू इन जनरल बॉगी, वहां पे कोई टिकट सिस्टम तो है नहीं ऐसा कि आपके सीट रिजर्व्ड है। यू विल फेस दिस। अब आप इससे इरिटेट हो जाओ, उससे लड़ने लगो, युद्ध करने लगो, देन इट इज योर स्टूपिडिटी। यू मस्ट बी ओपन फॉर दिस कि वहां जा रहा हूं, ये सब तो होगा ही होगा, ये तो होना ही है।
It is about your attitude, that how you are going to react in that particular situation. अरे इधर खसकूंगा क्या, ये करूंगा क्या, बैग रख लिया बीच में, ये कर लिया. पीपल डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. या फिर उसमें ट्रेवल ही ना करो, उसमें ट्रेवल ही ना करो. और ट्रेवल कर रहे हो, देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कि ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, होंगी नहीं होंगी. और जब आप कहीं पहुंच जाओगे, देन योर रिलेटिव्स विल आस्क, आने में तकलीफ तो नहीं हुई कुछ? हुई भी होगी तो आप क्या कर लोगे? आप कह दो अरे बहुत तकलीफ हुई यार, फिर वो क्या बोलते हैं? अब कोई जवाब ही नहीं उनके पास. बोले चलो अब नहा धो के खाना खाते हैं अपन तो. तकलीफ है तो क्या कर लोगे आप? इट इज़ अबाउट योर एटीट्यूड, हाउ यू आर रिएक्टिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. बढ़ चढ़ गए हो धक्के भरी वाली बस में, तो भी धक्कों का ही आनंद लो. इधर तो धक्का लगा आगे वाले दरवाजे तक, आगे बस रोते रहो, चिढ़ते रहो, चिल्लाते रहो, तो आप अपना ही दिमाग खराब कर रहे हो. वहां पे कुछ होना जाना आपके दिमाग खराब करने से नहीं है. एंड देयर आर पीपल लाइक दिस. If they identify someone who is getting irritated, so they keep on pinching that person again and again. Have you seen such kind of people? इनमें से होंगे दो चार ऐसे. You go in city bus, I bus, where जब शाम को 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होता है, तो कुछ लोग तो मस्त मौला रहते हैं, चढ़ गए अपना झोला टांग कर बस में, पूरा जर्नी इंजॉय करते हैं. कुछ होते हैं मुंह बना के सड़ाते रहते हैं मुंह. इट्स अबाउट यू, योर परसेप्शन. This is utility function of attitude. If you have developed the right attitude, you will survive. Otherwise you will be in trouble. I hope you're getting this. So लिखो जर्नी, और क्या लिख सकते हो? एग्जामिनेशन हॉल लिख ही लिया. लाइफस्टाइल, 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 फूड डाइट, हर जगह फूड डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन्स. जॉइंटिस हो गया, चले गए बाबा के पास, वो झाड़ते झाड़ते तुमको झाड़ देगा, एक दिन मर जाओगे. इट्स अबाउट यू, हाउ यू, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव एक्वायर्ड. बाबा जी के झाड़ने से आज तक किसी का पीलिया खत्म हुआ नहीं है. आपको भी बहुत सर्क हुआ होगा, झड़वा झुड़वू को लाए होगे इधर उधर से, जॉइंटिस, पीलिया. एक सफ़ेद गमछा लेके गए होगे, उसने पूरा पीला करके दे दिया होगा, जो पूरा पीलिया इसमें आ गया. आई हैव सीन. वो सफ़ेद गमछा बुलाता था, उसको पूरा पीला कर देता था, बोले पीलिया झड़ गया. अब दिक्कत है कि अब इसको कहाँ दफनाया जाए, क्योंकि ये भी तो पीलिया ही है. जो भी ये झड़वाते हैं पीलिया, आज देम कि हैव फेथ इन बाबा जी, स्टॉप टेकिंग मेडिसिन्स. दवाई भी नहीं छोड़ेगा वो, दवाई भी नहीं छोड़ेगा ससुरा, दवाई भी खाता रहेगा, और ठीक होने के बाद बोलेगा फलाने से झड़वाया था इसलिए सही हो गया. इट इज़ योर एटीट्यूड दैट यू हैव एक्वायर्ड. प्रिजुडाइसेस भरा हुआ एटीट्यूड, फुल ऑफ प्रिजुडाइसेस, स्टीरियोटाइप्स. झड़वाने से पीलिया सही होते हैं? लीवर का बीमारी है, प्रॉब्लम इन लीवर, और झाड़ने से कैसे सही हो जाएगा? आई होप यू आर गेटिंग दिस. इसलिए तो हमारे देश में लोग इतने मर जाते थे. नाउ विथ मॉडर्न साइंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग. लोग मर नहीं रहे अब लोग मर नहीं. ये एक नया इशू हो गया भारत के लिए. इंडियन पॉपुलेशन इज गेटिंग एजिंग. लोग मर नहीं रहे, बूढ़ों का संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. एनीवे, ईटीसी, ईटीसी. नाउ गिव न्यू हेडिंग. New heading, second function, social function. Social function, that is social adjustment function. Social function, that is social adjustment function. People behave to get social recognition. People behave to get social recognition. Hence their behavior is at per social norms. Their behavior is at per social norms. Social norms. People adopt attitude. People adopt attitude
that helps them to gain social recognition, helps them to gain social recognition or approval, social recognition or approval, or acceptance, or acceptance, or acceptance. Human is a social animal. Human is a social animal. सोशल एनिमल, आइसोलेटेड नहीं रह सकते ना हम, समाज में ही रहते हैं. ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल एंड ह्यूमन enjoy the belongingness of the society, enjoy the belongingness of the society, and hence their attitude, is influenced by family, culture, tradition, religion, etc. ये बात समझ में आए क्या? सोशल फंक्शन मीन्स व्हाट? many of our attitude are influenced by the social norms. सोसाइटी में ऐसा होता है and hence we are also doing it. सोसाइटी में ऐसा होता है hence we are also doing it. Yes or no? Many time we perform the activities just to get social recognition, just to get social acceptance, just like marriages. Even if you are living with someone in live-in relationship, you will think that I should get into marriage now. Why? You're living happily. You are living happily. But society will recognize your relationship once you get married. Or there could be a understanding in between those people. Okay, we are happily. We are living together. Everything is fine, correct. But still, they want to get marry. Why? To get social recognition. Many kind of things that happens. Many time people preaches against the adambarvad. This is wrong, this is bad, etc. But they too perform many type of social things. अब आप नहीं मानते बहुत सारे आडंबरवादों को, यू आर वेरी रैशनल. आपके घर में पूजा हो रही है तो क्या उसका खंडन कर दोगे? इट्स नॉट पॉसिबल. You are not believing in that, but you can't others to enforce your views. They too have their views. किसी के ऊपर जबरदस्ती अपने व्यूज आप थोप नहीं सकते. रातों रात सोसाइटी का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकता. Yes or no? You are against the superstition, so you are preaching them against the superstition. That is fine. But if they are following their rituals, you can't stop them. Even you too have to get part of it sometime, just to get social recognition, because you have to live with society. Even if you want to reform, who you want to reform, to whom you want to reform? Society. If you want to reform society, you have to live with society. If you want to reform the society, you have to live with society. If you are isolating yourself from the society, these people are the real bullshit, I will not tolerate them, तो फिर तो मतलब ही नहीं है. आप आइसोलेटेड हो गए, आप अपनी अलग दुनिया बना नहीं सकते. So even if you want reforms in the society, you have to live with society, and society will recognize you, accept you when you are behaving in the manner that they want you to behave. Your behavior might be different. You are not that superstitious, but sometimes you have to follow the rituals of the society. Then only society will accept you, will recognize you. Once society is accepting you, recognizing you, then they will follow your path, then they will follow you, then they will listen to you. समाज से अलग होकर आप समाज को सुधार नहीं सकते. आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस. यस और नो? जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स आज तक रहे, ये सब समाज में ही तो रह रहे थे, समाज को ही सुधार रहे थे.
समाज को ही गालियां दे रहे थे, समाज को ही अप्रिशिएट कर रहे थे। कुछ लोग उनकी बातों को समझते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ नहीं समझते। ऐसा तो दुनिया में होता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो सेकंड फंक्शन इज व्हाट? सोशल फंक्शन, राइट। थर्ड, अच्छा एक लाइन और लिख लो इसमें, एक लाइन। many of our attitude many of our attitude many of our attitude exist because society expects them, because society expects them, society expects them. for example, for example, wearing formal clothes in interview. For example, wearing formal cloth in interview. क्यों पहनते हो ऐसा फॉर्मल कपड़े इंटरव्यू में? इंटरव्यू में पीपल आर वियरिंग फॉर्मल क्लॉथ्स और उससे पूछते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे, हमारी तहजीब संस्कृति को कैसे जिंदा करेंगे। सर सूट बूट टाई पहनकर तो नहीं करेंगे, आप भी धोती में आओ, मैं भी धोती में आता हूं। बट इवन आफ्टर दैट पीपल आर वियरिंग व्हाट? हाँ, फॉर्मल outfits in interview. Why? Is there any written rule? But people behave कि यार नहीं यार इस जगह ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए। बड़ा लॉजिकल सवाल है। हाँ, वी आर सेइंग इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, तो फिर कुर्ता पजामा में क्यों नहीं हो रहा है? धोती कुर्ता में करो इंटरव्यू, क्यों सूट पहनना पड़ जाता है? क्यों टाई लगा रहे हैं? क्यों चमचमाती सफेद शर्ट नीचे पैंट, कुर्ता पजामा पहन लो। यस सर, नो। आवर प्राइम मिनिस्टर सेज इंडियनाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही में भारतीय संस्कृति की झलक होनी चाहिए, तो सूट पहनकर कैसे आएगी सर? वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब इस पर आप लोग बहस करते रहना क्यों, कैसे और क्या ज़रूरत है ये पहनने का। ना पहने तो क्या होगा? क्यों सरकार नहीं कह दी थी कि अपना ट्रेडिशनल वेयर पहन कर आओ इंटरव्यूज में? बोले वहां एक जैसा दिखना जरूरी है, तो अंग्रेज छोड़ के चले गए। ब्रिटिशर्स टॉट अस ना, सूट अपने यहाँ तो नहीं चलता था, दे टॉट अस। इस पे आप लोग बहस करते रहो, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लॉजिक निकालना खुद से। राइट, नेक्स्ट symbolic functions. Third is symbolic function. Symbolic function. People reflect their behavior. People reflect their behavior by adopting some symbolic function. By adopting some symbolic functions. Symbolic function. It could also be termed as value expressive functions. Value expressive functions. That means people use various symbols. People use various symbols to express their beliefs. Various symbols to express their beliefs. बहुत सारे symbols आप ही लोगों ने यूज किए होंगे हाल फिलहाल। क्यों? अपने beliefs को express करने के लिए। जैसे कि I could see many people are wearing or they have tied a colorful thread on their wrist. Why? This thread is not protecting you from many of the uncertainties in your life, but still it is a symbolic function. Through this symbol you are expressing your belief, your faith, identity, sometime identity, ideology, personality, etc.
etc. For example, purchasing national flag on Independence Day. Purchasing a national flag on Independence Day. Again, it's a symbolic function. We are using some symbols to express ourselves. Purchasing national flag on Independence Day. we can say through symbolic function, individual wants others. Through symbolic function, individual want others to understand. हाइफन डालकर लिखेंगे to understand what they believe, what they support, what they oppose, what they believe, what they support, what they oppose. What they cherish, what they support, what they oppose, what they cherish, what is valuable to them, etc. I hope you're getting this. It is all about attitude, what kind of attitude that we have acquired. Through symbols, we are trying to show others that who we are, what we stood for what we are concerned. I hope you're getting this. Just like all the religious symbols that people wear or carry, it show करता है ना what is important to you, what is sensitive to you. National flag, वरना झंडा खरीदने से, गाल पे बनाने से देशभक्ति तो नहीं होती. देशभक्ति तो अलग चीज है यार. But still, through these things, people try to express themselves. Yes or no? A new trend is going on social media. A new trend. What is a new trend? Internet free moments. People are posting a photograph and they try to show that I was isolated from this world in that moment. No internet connection, no network, nothing. I was all alone with myself or mobile phone. आपने देखा कि नहीं? तुम लोगों ने नहीं देखा ये? मैं तुमसे ज्यादा अपडेटेड हूं. A new fashion is on internet, on social media, new trend. People are posting a photograph. That photograph might be of a mountain or a river or a beach or a forest or any isolated place. So they post photograph जिसमें वो भी पिक्चराइज होते हैं, दिखते हैं, and then they are writing on it internet free moment or like that कि I was isolated from the world, I was with myself, और कोई नहीं था, खुद में था, कोई इंटरनेट की दुनिया नहीं. और ये वो कहाँ दिखा रहा है? इंटरनेट पर. वो खुद के साथ था ही कहाँ? He was with मोबाइल फोन. और एक शॉट तो लिया नहीं होगा, उसमें भी 10-12 लिए होंगे, फिर 2-4 डिलीट किए होंगे, 3-4 पे 10-12 फिल्टर ट्राई किए होंगे, और ये अच्छा ये डाल देता हूँ, और फिर उसने पोस्ट किया आई वॉज विथ मी विदाउट इंटरनेट. ये क्या है? ये किसी टाइप के सिंबल्स ही तो शो कर रहे हो. पीपल आर राइटिंग ऑन इंटरनेट, आई डोंट केयर what people think about me, and you are giving this message to people. If I really don't care that what you people are thinking about me, then I really don't care. फिर मैं आपको बताऊंगा थोड़ी आके कि देखो मुझे फर्क पड़ता नहीं तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो. वहीं पकड़ लेना कि सर अगर आपको फर्क पड़ता नहीं कि हम लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर काहे टेंशन ले रहे हो? ये लाइन बोलने की जरूरत ही नहीं थी. ये लाइन बोलने की जरूरत ही नहीं थी. People are saying this, posting this on social media, and they are checking how many of people have seen this.
कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करता, ये इंटरनेट पर डालकर सबको बता रहा है कि मैं तुम सबकी चिंता नहीं करता, तो सबको बता क्यों रहा है? I hope you're getting this. Wearing certain symbols just to show what I believe. I hope you're getting this. Stupidity से ज़्यादा कुछ भी नहीं है. People are not alone. अकेला है ही कौन? 20 मिनट अकेले बैठकर देखो, कितने लोग 20 मिनट अकेले बैठते हैं? 20 मिनट अकेले बैठ लेते हो? 20 मिनट अकेले? अकेले मीन्स का मतलब समझते हो? पहले अकेले का मतलब पता हो. अकेले मीन्स, अकेले मीन्स अरे नॉट ओनली विदाउट फोन, अकेले मीन्स विथ ओन सेल्फ, वन सेल्फ, ये एकदम शांत. अरे ऐसे तो मैं भी दिन भर अकेला बैठकर वेनिस घूमता रहता हूं, अकेला थोड़ी हूं. आई एम थिंकिंग अरे वाह नाव में घूम रहा हूं मैं, बहुत मजा आ रहा है. आई एम नॉट अलोन, वेनिस इज विथ मी. ये अलोन थोड़ी हुआ. अलोन मतलब शांति, शून्य, एकदम शांत. कोई ये मत कहना सर 8 घंटे सो रहा हूं आजकल, वो अकेला नहीं. ये शांति नहीं है. सारी की सारी अशांति इधर है, सारी की सारी अशांति इधर है. ये तो आंख मूंदे लोग हैं जो शांति ढूंढने मंदिर जा रहे हैं. सारी की सारी अशांति इधर है. अशांति भीतर है तो शांति भी भीतर मिलेगा. और शांति ढूंढने जाते कहाँ हैं? मंदिर. शांति मिलती नहीं उधर, कोई और मिल गई. अकेले बैठो तो 15 मिनट एक बार. इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है. आप अकेले बैठे हो बट इसमें कुछ और ही चल रहा है, तो आप अकेले कहाँ हो? आप अकेले बैठे हो, म्यूजिक चल रहा है, तो आप अकेले कहाँ हो? आपका ध्यान तो म्यूजिक में है. जस्ट अलोन, कुछ नहीं, एकदम शून्य, जीरो, नो थॉट, थॉटलेसनेस. दिमाग पे कुछ नहीं चल रहा है. यू आर ऑल अलोन. वो अलोन होगा. वो बैठो कभी 15 मिनट, पता चल जाएगा. मैंने कोशिश की बहुत बार, बट 20-15-20 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया. अपनी इतनी हैसियत नहीं है कितना बैठ सके. 5 मिनट बैठ गए, फिर लगता है क्या कर रहा हूँ पागलपन में, चलो कुछ काम ही करते हैं बैठे बैठे. फिर दिमाग में कुछ और सोच रहे हो. एकदम अलोन, एकदम शांत. तब पता चलेगा आप कितने स्ट्रांग हो. अगर अकेले नहीं बैठ पा रहे हो तो आप क्या हो? अधूरे हो. फिर तो आप अधूरे हो. अच्छा, ऐसा भी नहीं इस अधूरेपन को कोई दूसरा आके भर देगा. अगर कोई दूसरा सोच रहे हो कि हम दोनों मिलकर पूरे हो जाएंगे, तो 2 अधूरे हो. तुम 2 अधूरे हो. ये तो बैसाखी होगी. फिर ये तो बैसाखी हो गई. कभी दूसरे के कंधे पे रख कर रोने का नहीं. किसी के भरोसे में नहीं कि तुम किसी को तुम मुझे अप्रिशिएट कर दो मैं खुश हो जाऊं, तुम मुझे बुरा बोल दो तो मैं उदास हो जाऊं. ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए. देन यू आर ऑल अलोन. देन यू आर ऑल अलोन. कल मर रहे हो, आज मर जाओ. आज मर रहे हो, अभी मर जाओ. मुझे क्या लेना देना बाकियों से. ऑल अलोन. सेल्फ. व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी, व्हाट पीपल आर स्पीकिंग अबाउट मी, हाउ आई शुड स्पीक अबाउट पीपल, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू. तो आप यहाँ पर भी अलोन कहाँ हो? एकदम शांत चित्त करके 15 मिनट बैठो कभी. इट्स इम्पॉसिबल यार. 15 मिनट तो इम्पॉसिबल है. हाँ, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जा सकता है. और आप जितना बढ़ा लो उतना ही आपका प्रोग्रेस होना तय है. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. एनीवे, ये जो लोग इंटरनेट पर डाल रहे हैं ना नया ट्रेंड, ये लोग बिल्कुल इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड नहीं है. ये लोग वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं ताकि इंटरनेट कनेक्शन आते ही हम क्या कर दें, इंटरनेट पे डाल दें. वो फोटो खींचते हुए भी उन्होंने 15 टैग लिए होंगे. थोड़े दिन पहले एक और ट्रेंड चल रहा था, हिंदुस्तान के सारे वो शुरू हो गए थे अपने ब्रह्मचर्य. सुबह 4 बजे उठ रहा है, नहा ले रहा 4 बजे उठ के ठंड में. हनुमान जी के मंदिर दौड़ के गया, फटाफट झाड़ू वाड़ू लगाई पूरी, और फिर उधर बैठकर पूजा करी, हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर में बगल में 2-4 दंड वंड पहले, मुगदर वुगदर घुमाए, फिर घर आया, फिर नाश्ता वाश्ता किया. ये सब रिकॉर्ड कर रहा है वो. ये कैसा ब्रह्मचर्य है? क्योंकि इसके जीवन में कोई और काम ही नहीं, निकम्मा निठल्ला है ये, फुर्सत राम है ये.
सुबह 4 बजे उठ रहा है तो कम से कम 6 घंटे तो सोएगा। तो रात को कब सो रहा होगा ये? 9:30-10 बजे सो रहा होगा। अब इतना बड़ा इसने वीडियो बनाया है तो उसमें कितने घंटे लगे होंगे इसको? फिर दिन भर बैठ के एडिट करेगा, तभी तो शाम को 9 बजे पोस्ट डालेगा, और ये रोज डालता है। इसको जीवन और कोई काम धाम नहीं है। इसका तो ऐसे ही ब्रह्मचर्य है, जीवन में कुछ काम धाम तो है ही नहीं। आई होप गेटिंग दिस। ये कोई ब्रह्मचारी है? ये सिंबलिक फंक्शंस हैं, जस्ट टू शो देखो मैं क्या करता हूँ, व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये तो एटीट्यूड है कि जब मैं ऐसा एटीट्यूड दुनिया को शो करूं तो पीपल विल वैल्यू मी, रेस्पेक्ट मी। आई होप गेटिंग दिस। ETC, ETC चाहिए तो एक पॉइंट और है, दैट आई विल डिक्टेट टुमारो।